Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss the topic pedigree analysis. So in our last video we have discussed the introduction of pedigree analysis, some symbols which are used in pedigree analysis. So let us discuss how we can solve the problems of pedigree analysis. So there are some rules for that. So firstly, what is pedigree chart? So if we are representing the family and we are representing a particular trait in a family tree, then that is known as the pedigree chart. And why there is the need of pedigree analysis? Because tracing the appearance of the first character, कि कोई भी कैरेक्टर है या कोई भी डिसीज़ है वो कैसे अपीयर होगी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में. सो पेडिग्री एनालिसिस कैन हेल्प अस. सेकेंड इज़ द नेचर ऑफ द कैरेक्टर, कि जो वो कैरेक्टर है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर है वो कैसा होगा. सो दैट कैन ऑल्सो वी फाइंड आउट. नेक्स्ट इज़ द जेनेटिक काउंसलिंग. वी कैन काउंसल द कपल और द for becoming couple which want to be the couple in the future or who want to get married. So we can counsel them that if there are some symptoms in them, or if by their counseling we can tell that there will be some problem if these persons are the carrier. So these are some importance of the pedigree analysis. Now with the help of the pedigree chart we can solve the problem. So what type of disorders we will study in pedigree analysis? Mainly the Mendelian disorders. There are so many diseases we have discussed, and these are divided into two categories. First, that is the autosomal linked disease, and second is the sex linked. So autosomes means the chromosomes except the sex chromosomes are known as the autosomes. And in case of human being there are 22 pair of autosomes, and that is the one pair that is of sex chromosome. So we have discussed the disorders, the autosomal dominant, autosomal recessive disorders, and the sex linked dominant disorder and sex linked recessive. So by understanding those disorders, now you can very clearly understand what is the autosomal dominant and what is the autosomal recessive. Means if the disease causing gene that is inherited in recessive manner and that is present on the autosome, then that is the autosomal recessive. And if the affected gene or the defected gene is present on the autosome and it is transferring in the next generation in a dominant way, then it is the autosomal dominant. Next, the sex linked. So this disorder also known as X linked. Why? Because the defected gene is present on X chromosome, only on the X chromosome. So these diseases are also the X linked disorders. And these are the X linked dominant and X linked recessive. Now there are some tricks to solve the problem. So firstly, try to understand. The first trick is the affected individual in each generation. क्या करना है हमें? अगर हमें कोई पेडिग्री चार्ट दिया गया है तो उस पेडिग्री चार्ट में हम क्या देखेंगे? अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन, कि क्या सभी जनरेशन में अगर कोई अफेक्टेड इंडिविजुअल होगा तो वो हमने उसमें देखना है. तो सबसे पहले सो व्हाट इज़ द फर्स्ट ट्रिक, कि अफेक्टेड इंडिविजुअल देखना है हमने ईच जनरेशन में. तो उस डिसीज़ को, वो डिसीज़ क्या होगी? डोमिनेंट होगी. सपोज़ मैंने यहाँ पे एक सिंबल लिया है, दैट इज़ द मदर, और ये फादर. यहाँ पे फादर अफेक्टेड है. अगली जनरेशन में जो ये डॉटर है, वन सन एंड नेक्स्ट डॉटर, तो यहाँ पे ये डॉटर अफेक्टेड है. अगली जनरेशन में हम देख रहे हैं, अगली जनरेशन में यहाँ पे ये सन अफेक्टेड है. तो क्या होगा
मीन्स द अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन। सबसे पहले हमें क्या देखना है कि हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल है या नहीं। तो यहाँ फर्स्ट जनरेशन में भी है, सेकंड में भी है और थर्ड में भी है। तो उस डिसीज़ को हम सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेंगे कि दैट इज़ द डोमिनेंट। सेकंड हमने इसमें देखना है, डोमिनेंट है तो वो हो सकती है ऑटोजोमल भी और एक्स लिंक्ड भी। सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, अगर ऑटोजोमल कैसे होगी कि दोनों में जा रही है, डॉटर में भी और सन में भी, तो वो होगी ऑटोजोमल। और अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगा, कौन सा इनहेरिटेंस, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होता है कि फादर फीमेल टू मेल जाए और मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल, मीन्स फादर टू डॉटर एंड मदर टू सन, मीन्स एक पैटर्न होगा। अगर एक पैटर्न होगा तो वो कौन सी डिसीज़ होगी, एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो सबसे पहली ट्रिक क्या थी, अफेक्टेड इंडिविजुअल। हमने सबसे पहले पेडिग्री एनालिसिस करते हुए हमने सबसे पहले यही देखना है कि हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं या नहीं। अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं तो वहाँ हम लिख देंगे डोमिनेंट, और अगर अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं होंगे तो वो डिसीज़ होगी रिसेसिव। और अब हमें पता करना है कि वो ऑटोजोमल होगी या सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोजोमल कब होगी, अगर दोनों में डिसीज़ हो, डॉटर में भी हो सन में भी हो, तो वो ऑटोजोमल होगी। लेकिन अगर फादर अफेक्टेड हो, फादर से डॉटर में आ रही हो और मदर से सन में आ रही हो, मीन्स एक पैटर्न आपको दिखे, तो वो कैसी होगी, एक्स लिंक्ड। सिंपली हम यहाँ पे देखें कि अगर हम यहाँ पे इसके साथ इसकी मैरिज भी हम शो कर देते हैं और यहाँ पे मदर को भी अफेक्टेड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इनहेरिटेंस देखें, फादर इज़ देयर, फादर से किस में आई है, डॉटर में, ठीक है। तो फादर से डॉटर में आई है, और आगे हम देखें फादर है, मदर से किस में आई है, सन में। तो ये कैसी होगी, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है, तो ये होगी सेक्स लिंक्ड। और हर एक जनरेशन में अफेक्टेड है तो ये हो जाएगी सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर हमने यहाँ पे इंडिविजुअल लिए हैं, यहाँ पे सिर्फ एक डॉटर ही अफेक्टेड है, अगर यहाँ पे ये सन भी अफेक्टेड होता तो हमें किसी पैटर्न का पता नहीं चलता, तो वहाँ पे फिर ये हो जाती ऑटोजोमल डिसीज़। और बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन एवरी जनरेशन, सो इट इज़ द डोमिनेंट। सो आई थिंक यू अंडरस्टूड द फर्स्ट ट्रिक, अफेक्टेड इंडिविजुअल इन ईच जनरेशन में देखो, अगर अफेक्टेड हैं तो वो डिसीज़ डोमिनेंट है। फिर उसके बाद आपने देखना है वो सेक्स लिंक्ड है या ऑटोजोमल। अगर वो जा रही है फादर से डॉटर में और मदर से सन में, तो वो होगी सेक्स लिंक्ड। लेकिन अगर दोनों चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, सन भी और डॉटर भी, तो वो होगी ऑटोजोमल। और डोमिनेंट आपको पहले ही पता चल गया है। सेकंड जो ट्रिक है हमारी, सेकंड ट्रिक में भी यही बताया गया है कि डोमिनेंट होगी और रिसेसिव होगी, और एक पैटर्न आपको दिखेगा। सो अगर पैटर्न आपको दिख रहा है तो वो होगी सेक्स लिंक्ड डिसीज़। नेक्स्ट इज़ द स्किपिंग ऑफ अफेक्टेड इंडिविजुअल। अगर स्किपिंग है, स्किपिंग मीन्स कि एक जनरेशन में तो अफेक्टेड इंडिविजुअल हैं, अगली में कोई भी अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है, तो वो डिसीज़ होगी रिसेसिव। कौन सी डिसीज़ होगी, वो रिसेसिव। और रिसेसिव में भी दो टाइप की होंगी, ऑटोजोमल और सेक्स लिंक्ड। और सेक्स लिंक्ड में अगर पैटर्न होगा तो सेक्स लिंक्ड होगी, और अगर कोई पैटर्न नहीं होगा तो वो होगी आपकी ऑटोजोमल डिसीज़। तो इसमें क्या करना है आपको, स्किपिंग किस तरह से देखोगे आप। सपोज़ एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज़ मदर एंड द फादर, यहाँ पे फादर क्या है, अफेक्टेड है। इधर हमने देखा यहाँ पे 2 इंडिविजुअल्स आर देयर, उनमें कोई भी अफेक्टेड नहीं है। अगली जनरेशन में यहाँ पे सन अफेक्टेड है, डॉटर नॉर्मल है, ओके। तो यहाँ पे अफेक्टेड थे लेकिन यहाँ अफेक्टेड नहीं है, यहाँ अफेक्टेड है, तो स्किपिंग हो गई तो वो डिसऑर्डर कैसा होगा, रिसेसिव। और ऑटोजोमल कैसे होगा, अगर डॉटर और सन दोनों अफेक्टेड हैं, मीन्स क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस नहीं है, तो वो आपका हो जाएगा ऑटोजोमल।
और अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस है तो वो हो जाएगा आपका सेक्स क्रोमोसोमल सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर. So I think you understood the tricks to understand or trick to solve the problem. One more thing also, अगर आपको इस तरह से पेडिग्री मिलती है जिसमें आप फीमेल भी और मेल भी जो नॉर्मल है, बट जो अगली जनरेशन में जो चिल्ड्रन है वो अफेक्टेड है, तो उससे पता चलेगा कि दैट फीमेल इज़ कैरियर. ओके, तो आई थिंक यू अंडरस्टूड कि अगर इस तरह से आपको मिले नॉर्मल पेरेंट्स हैं बट उनके चिल्ड्रन अफेक्टेड हैं, तो उससे आपको पता चलेगा दैट द फीमेल दैट इज़ द कैरियर फॉर दैट डिसीज. सो इन दिस केस द मेल दैट इज़ अफेक्टेड, सो हाउ दिस मेल इज़ अफेक्टेड, बिकॉज हेयर द नॉर्मल फीमेल इज़ प्रेजेंट and the normal male. So only when this condition come, only when this female is the carrier, because in this male one X comes from the female and one Y come from the male. So that is the affected male, and this is the method to find out the recessive trait. Recessive trait find out करने के लिए मैंने आपको एक ये भी बताया है कि अगर स्किपिंग होगी किसी जनरेशन में, हर एक जनरेशन में अफेक्टेड इंडिविजुअल नहीं है तो भी वो रिसेसिव ट्रेट होगा. और अगर आपको इस तरह से मिल रहा है कि जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं बट उनमें से जो अफेक्टेड इंडिविजुअल मिलेगा, देन ऑल्सो इट इज़ द रिसेसिव ट्रेट. सो दैट इज़ द फोर्थ ट्रिक. देन द फिफ्थ, इफ़ द फीमेल बिकम्स अफेक्टेड व्हेन ट्रेट पासिस फ्रॉम वन पेरेंट ओनली, मतलब एक पेरेंट ही अफेक्टेड होगा और एक पेरेंट से ही जो ट्रेट है वो पास हुए हैं, देन द ट्रेट इज़ डोमिनेंट. तब वो ट्रेट कैसा होगा? डोमिनेंट होगा. सो इट मे बी ऑटोसोमल और द सेक्स लिंक्ड. सो दीज आर द सम ट्रिक्स टू सॉल्व द पेडिग्री एनालिसिस, एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस हाउ टू सॉल्व दीज पेडिग्री एनालिसिस ट्रिक. सो लेट्स रिवाइज ऑल द ट्रिक्स. फर्स्ट मैंने आपको बताया कि अगर आप हर एक जनरेशन में आपको क्या मिल रहा है, अफेक्टेड इंडिविजुअल मिल रहा है, तो वो क्या होगा? वो डिसीज़ होगी डोमिनेंट. सेकेंड ट्रिक में आपको मैंने ये बताया कि अगर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी फादर से डॉटर में और मदर से सन में, और तो उसको हम बोलेंगे सेक्स लिंक्ड. और अगर ऐसा नहीं होगा, दोनों इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे, तो उसको हम बोलेंगे ऑटोसोमल. जो हमारी जो थर्ड ट्रिक है उसमें मैंने आपको बताया कि अगर स्किपिंग होगी तो वो कैसा डिसऑर्डर होगा? ऑटोसोमल. स्किपिंग होगी तो वो होगा रिसेसिव, और रिसेसिव में हो सकता है ऑटोसोमल भी और सेक्स लिंक्ड भी. सेक्स लिंक्ड कब होगा? जब हमारी क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस होगी. और ऑटोसोमल तब होगा जब दोनों इंडिविजुअल्स के अंदर, सन के अंदर भी और डॉटर के अंदर भी जो कैरेक्टर है वो पास होगा. नेक्स्ट इज़ द फोर्थ, कि अगर अनअफेक्टेड पेरेंट हैं और जो इंडिविजुअल अफेक्टेड होगा तो देयर शुड बी द फीमेल शुड बी द कैरियर फॉर दैट, एंड दैट इज़ द रिसेसिव ट्रेट. आफ्टर दैट, इफ़ द फीमेल बिकम्स अफेक्टेड व्हेन ट्रेट पासिस फ्रॉम वन पेरेंट ओनली, देन जो वो ट्रेट है वो डोमिनेंट होगा, और वो हम पता लगा लेंगे कि वो ऑटोसोमल होगा और सेक्स लिंक्ड. ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड हम अच्छे से पता लगा लेते हैं. ऑटोसोमल में हम दोनों इंडिविजुअल अफेक्टेड होंगे, सन भी और डॉटर भी, बट सेक्स लिंक्ड में क्रिस क्रॉस. तो जहाँ भी आपको क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस दिख जाए वो कैसी होगी? सेक्स लिंक्ड. और अगर हर एक जनरेशन में प्रेजेंट होंगे तो डोमिनेंट, और हर एक जनरेशन में प्रेजेंट अगर नहीं होंगे तो उसको हम बोलेंगे रिसेसिव कैरेक्टर्स. और इन ट्रिक्स के बेसिस पे, ये हमारी जो 3-4 ट्रिक्स हैं, इन ट्रिक्स के बेसिस पे वेरी इजीली आप फाइंड आउट कर लोगे, यू कैन सोल्व द प्रॉब्लम ऑफ पेडिग्री एनालिसिस. तो सबसे पहले आपको क्या देखना है? अफेक्टेड इंडिविजुअल को. उसके बाद फिर आपने इनहेरिटेंस को देखना है कि वो क्रिस क्रॉस है या वो नॉर्मल है. तो इन दो चीज़ों को देख के आप फाइंड आउट कर सकते हो कि दैट इज़ द सेक्स क्रोमोसोमल or that is the autosomal, if that is the dominant, or if that is the recessive. So in our next video we will discuss some
you can say the problems related to pedigree analysis. That's all. Thank you.